Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today I am going to provide you solution of your revision test. Are these statements true or false? Rain feeds all water bodies. Rain से जितनी भी water bodies हैं वो सभी feed हो जाती हैं. This is true. We must conserve water. हमें water की conservation करनी चाहिए. This is also true. Desalination is the process of adding salt to drinking water. Desalination एक process है जिसमें drinking water में salt को add किया जाता है. This is false. B part, short answer questions. Name any two waterborne disease. Two waterborne disease के बारे में आपको बताना था. The two waterborne disease are typhoid and cholera. Second one is What is desalination? Desalination क्या होता है? It is the process of removing salt and other minerals from saline water to convert into fresh water. ये एक process है जिससे हम salt और other जो minerals हैं उन्हें हम remove करते हैं from saline water so that हम saline water को convert कर सके into fresh water. What is potable water? Potable water क्या होता है? Water which is fit for drinking is known as potable water. Water जो fit होता है drinking के लिए उसे बोला जाता है potable water. Now see part. How can we make impure water pure and clean? हम impure water को pure and clean कैसे बना सकते हैं? We can make impure water pure and clean by boiling and filtering it. हम impure water को clean और pure बना सकते हैं क्या करके? उसे boil और filter करके. Okay students? And second question is explain the ways of checking water pollution. Water pollution को हम किस तरह से check कर सकते हैं? We should not throw any kind of waste in the water bodies. हमें कभी भी किसी भी तरीके का waste water bodies में throw नहीं करना चाहिए like ponds, lakes and rivers. Water bodies कौन सी होती हैं? Ponds, lakes and rivers. इनमें हमें कभी भी किसी भी तरीके का waste हमें throw नहीं करना चाहिए. All domestic and industrial sewage should be treated before being released into a water body. जितने भी तरह की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज है उन्हें पहले ट्रीट करना चाहिए रिलीज़ करने से पहले किसी भी वाटर बॉडी में. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिविजन टेस्ट. नाउ लेट अस रिवाइज चैप्टर नंबर 11 दैट इज इंक्लूडेड इन योर पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस. In chapter types of houses, we have read about our home. Our home is made up of cement, steel, wood, stone, glass, bricks, etc. जो हमारा home है वो किससे बना है? Cement, steel, wood, stone, glass, bricks, इन सभी चीज़ों से बना है. It is made by architect, mason, carpenter, plumber, electrician and painter. और हमारे house को या home को किन्होंने मिलके बनाया है? आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड पेंटर. इन सभी प्रोफेशंस के लोगों ने किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करी है ताकि हमारा होम बन सके. मेड फॉर द क्लाइमेट ऑफ द एरिया ऑफ अ होम. जो हमारा होम है वो इस एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन एज वेल एज उसे बनाया जाता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज वी हैव रीड इन दिस चैप्टर? हॉट ड्राई रीजन्स. हॉट ड्राई रीजन्स में किस तरह के हाउस होते हैं? थिक वॉल्स ऑफ स्टोन और मड, रूफ्स आर फ्लैट और शैलो डोम्स. इसमें जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं जो कि स्टोन या मड से बनी हो, और जो रूफ्स हैं वो फ्लैट होते हैं और उनके जो डोम हैं वो शैलो होते हैं. देन नेक्स्ट इज हॉट वेट रीजन, जहाँ पे हॉट रीजन भी हो एज वेल एज वेट रीजन हो. हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स और पोल्स विद स्टीप और स्लांटिंग रूफ. यहाँ के जो हाउसेज होते हैं उनका वो कैसे होते हैं? वो स्टिल्स या पोल्स पे स्टैंड रहते हैं और जो इनकी जो रूफ हैं दैट आर स्लांटिंग. कोल्ड रीजन, हाउसेज नोन एज इग्लूज मेड ऑफ स्नो. यहाँ पे जो हाउस बनते हैं वो स्नो से बनते हैं और जिन्हें हम इग्लू के नेम से जानते हैं.
Then we have read about skyscrapers. Very tall building to accommodate many people. ये बहुत ही tall building होती है जो accommodate करती है बहुत ही सारे लोगों को. Accommodate means shelter देती है काफ़ी लोगों को. Then slums, home to people who can't afford houses in city. Slums जो होते हैं ये home for people होते हैं जो houses को afford नहीं कर सकते cities में. Build using corrugated metal sheets, packing cases etc. और ये बनते हैं corrugated metal sheet से, packing cases से. ये सभी इनका base material होता है. Now students, let us revise book work of this chapter. A part, are these statements true or false? क्या ये statements true हैं या false हैं? Mark T और F. The earliest human beings lived in caves. Earlier human beings कहाँ रहते थे? Caves में. This is true. People make igloos in hot dry regions. People igloo बनाते हैं hot या dry region में. This is false. Timber is one of the cheapest building materials used. जो timber है वो one of the cheapest building material है जिसे use किया जाता है. This is true. Architects fit in the wires, fans and lights in a house. जो architects हैं वो wires, fans and lights को fix करते हैं एक house में. This is false. Skyscrapers need to be flexible in strong winds. जो skyscrapers हैं उन्हें flexible होना चाहिए strong winds में. This is true. Then B part, match the following. Igloos, Arctic regions, house on stilts. This is hot और wet climate में होता है. Skyscrapers, tall buildings को बोलते हैं. Corrugated metal sheets, these are shanty towns. थिक वॉल ऑफ मड, थिक वॉल ऑफ मड कहाँ पे बनता है? हॉट या ड्राई रीजन में. नाउ सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटीरियल्स यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. कौन सा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटीरियल होता है जो ह्यूमन बींग यूज़ करता है? टिम्बर या वुड. सेकेंड वन, हाउसेज इन डैश रीजन्स हैव फ्लैट रूफ. किस रीजन में फ्लैट रूफ होता है? हॉट ड्राई रीजन में. ब्रिक्स आर मेड ऑफ, जो ब्रिक्स हैं वो किन से बने हैं? मोल्डिंग क्ले से. फोर्थ वन, एन आर्किटेक्ट मेक्स द डैश ऑफ अ हाउस. जो आर्किटेक्ट है वो हमारे हाउस का क्या करते हैं? वो प्लान बनाते हैं उसका. फिफ्थ वन, वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड. जो बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्काई स्क्रेपर्स. Now D part, very short answer questions. Where did human beings first take shelter? Human beings ने सबसे पहले shelter कहाँ लिया था? In natural caves. Second one, what are igloos? Igloos क्या होते हैं? Igloos are houses made up of snow. Igloo houses होते हैं जो snow से बनता है. Who lives in slums? Slums में कौन रहते हैं? They are homes to people who cannot afford houses in the city. जो slums हैं वो home होते हैं people के जो city में house को afford नहीं कर सकते. Now E part, short answer questions. State the relationship between the house built and the climate of a place. आपको relationship बताना है एक house जो built हुआ है और उसी area में जो climate है उसके बारे में. Houses are built to suit the climate or weather conditions of that place. जो houses हैं उनको build किया जाता है so that वो वहाँ का weather या climate जो है उसको suit कर सके. In hot dry regions, buildings have thick walls of stone or mud. Hot और dry region में जो buildings हैं उनके जो walls होते हैं वो बहुत ही thick होते हैं जो stone या mud से बनता है so that heat from outside does not, ताकि जो हीट है फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट कम इन ईजीली, ताकि वो घर के अंदर ईजीली ना आए. द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स आर फ्लैट और शैलो डोम्स. जो रूफ है उन बिल्डिंग के वो फ्लैट होते हैं या शैलो डोम्स होते हैं. दिस इंश्योर्स दैट एज लिटिल एरिया एज पॉसिबल इज़ एक्सपोज टू द सन. इससे क्या होता है कि मिनिमम से मिनिमम एरिया जो है वो सन का एक्सपोजर उसको मिलता है. नाउ सेकेंड वन, व्हाट आर स्काई स्क्रेपर्स, वाई आर दे मेड. स्काई स्क्रेपर्स क्या होते हैं और उन्हें क्यों बनाया जाता है? स्काई स्क्रेपर्स आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स. जो स्काई स्क्रेपर्स हैं वो बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स हैं. दे आर मेड टू अकोमोडेट मैनी पीपल. और इन्हें बनाया जाता है
ताकि हम काफ़ी सारे लोगों को, मतलब मैनी पीपल्स को एकोमोडेशन मिल सके. ओके स्टूडेंट्स. Now third one is what are slums? Slums क्या होते हैं? Large cities such as Mumbai, Delhi and Kolkata have huge shanty towns or slum. जो large cities होते हैं like मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सभी में huge shanty towns होते हैं. They are homes to people who cannot afford houses in the city. और ये home होते हैं उन people के जो city में houses को afford नहीं कर सकते. Now let us go through long answer question. First one is what are the materials used for building brick houses? कौन से materials होते हैं जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ को बिल्ड करने के लिए? ब्रिक हाउसेस को बिल्ड करने के लिए. The materials used for building brick houses, जो materials यूज़ होते हैं इन building brick houses वो क्या है? सीमेंट, लाइम, सैंड, ब्रिक्स एक्सेट्रा. वो है सीमेंट, लाइम, सैंड, ब्रिक्स एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिल्डिंग के डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं? द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस. जब टेम्परेचर में चेंज हो जाता है और वेदर कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं. लोड एंड स्ट्रेस अ बिल्डिंग वुड हैव टू विथस्टैंड. और बिल्डिंग को कितना लोड और स्ट्रेस हैंडल करना है. ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डिज़ाइन. ये सभी फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिज़ाइन को. थर्ड वन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज क्या होते हैं जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में बनाए जाते हैं? हॉट एंड ड्राई रीजन्स थिक वॉल्स ऑफ स्टोन और मड रूफ्स आर फ्लैट और शैलो डोम्स. इनके जो हॉट एंड ड्राई रीजन में हाउस बनते हैं उनके वॉल्स बहुत ही थिक होते हैं जो स्टोन या मड से बनता है, और जो उनके रूफ्स हैं वो फ्लैट या शैलो डोम्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स. देन हॉट एंड वेट रीजन्स. हॉट एंड वेट रीजन्स में किस तरह के होम बनते हैं? हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स और पोल्स. हाउस बनते हैं स्टिल्ट्स या पोल्स में विद स्टीप और स्लांटिंग रूफ्स, जिनके स्टीप या स्लांटिंग रूफ्स होते हैं. कोल्ड रीजन्स हाउसेज नोन एज इग्लूज आर मेड ऑफ स्नो. जो हाउसेज स्नो से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इग्लूज. देन स्काई स्क्रेपर्स वेरी टॉल बिल्डिंग टू अकोमोडेट मैनी पीपल. ये एक टॉल बिल्डिंग होती है जो बहुत सारे लोगों को अकोमोडेशन देती है. देन वी हैव रीड अबाउट स्लम्स. होम टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड हाउसेज इन द सिटी. स्लम्स होम होते हैं उन पीपल के जो सिटी में हाउस को अफोर्ड ना कर सके. These are built using corrugated metal sheets, packing cases, etc. और ये बनते हैं corrugated metal sheets और packing cases से. Okay students, so today we have revised book work and notebook work of chapter 11 types of houses. This chapter is included in your periodic test syllabus. So revise this chapter properly. Thank you and goodbye.